Welcome back students. My name is Santosh Kumar Sen and today we are again continuing our last topic, metals and non-metals. In last topic, as we have discussed about metals and non-metals, its common properties. Common properties like hardness, softness, ductility, malleability, that all the properties we had discussed in last topic, and some exceptions of metals and non-metals. को याद होगा हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में बात किया था मेटल्स के कुछ एक्सेप्शंस, जैसे मरकरी हो गए, पोटेशियम, सोडियम, दीज आर दी एक्सेप्शन ऑफ मेटल्स। उसी तरह से नॉन मेटल के कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज या एक्सेप्शनल केस हम लोगों ने डिस्कस किया था, डायमंड, आयोडीन। तो मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, आई वॉज लेफ्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल, ग्रेफाइट। बुक में है कि graphite is also very important topic. You can say it is an exception of non-metal. It is lies in a non-metal category but behave just like a very good conductor of electricity. And you know that electricity and its conductivity present in metals category. मतलब मेटल्स की कैटेगरी क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी एक बहुत अच्छा क्या है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट वाज ओनली रिवीजन ऑफ लास्ट टॉपिक। इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से नॉन मेटल डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स, यहाँ पे हम अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स के हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ खास डिस्कशन नहीं करने वाले इन दिस टॉपिक। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जनरली मेटल्स हैविंग द लॉट्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज इनसाइड इट and different metals having the different type of chemical properties. Here in this series we are going to discuss first topic of chemical properties of metal. There is what happen when metals burn in air. आपको याद होगा पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज बात की थी, एसिड बेसिस, what happen when acid react with metal, what happen when acid react with non metal। तो उसी तरह के कुछ केमिकल रिएक्शन हम यहाँ देखने जा रहे हैं, बट कैटेगरीज अ लिटिल बी चेंज्ड। यहाँ पे हम देखेंगे मेटल्स, हाउ मेटल्स रिएक्ट विद एयर। पहला, एयर मीन्स the composition of air, the basic composition of air is oxygen in the chemical based। when oxygen air react with metal, first of all the basic formula and basic reaction will be formed। when metal react with oxygen it form metal oxide। suppose we have any metal, sodium, and having oxygen, so we will get metal oxide, sodium oxide। simple, metal oxide means metal is sodium, oxygen means oxide, sodium oxide। and how to balance, in previous class we had already discussed how to balance its valency। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, माइनस में 2। तो सोडियम को इसके साथ बैलेंस करने के लिए सोडियम मस्ट बी 2 एंड ऑक्सीजन मस्ट बी 1। दिस इज द ऑक्साइड, सोडियम oxide, but reaction is not balanced, so you have to maintain the number of molecules। suppose you are going to balance, it will be 2 first of all, and in this it will be 4 and it will be this। okay, so in this way you can balance the chemical formulas। now metal, one thing more you will be see, suppose you made the metal oxide and your reaction is continuing and in that reaction you are adding water। इसी मेटल ऑक्साइड में अगर आप वाटर ऐड करते हो तो ये क्या बन जाएगा आपका, suppose you have sodium oxide and you are adding water, so it will form as a, suppose this oxide is totally dissolved in water, then it cause and it form hydroxide।
hydroxide of the respective metal. Means here sodium hydroxide. यहाँ क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड. Sodium hydroxide. The reaction will be balanced as per the number of molecule. Okay. तो ये अब तो दो बेसिक केमिकल फॉर्मूलाज जब एयर के साथ मेटल का रिएक्शन होता है और उसमें हम वाटर ऐड करते हैं. अब इसके अंदर के बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पे जाननी है. मीन्स आवर बेसिक एम इज टू नो हाउ मेटल्स हैविंग द कैपेबिलिटी टू रिएक्ट द वाटर, एयर in this way in the another environmental agent. environment में जो भी एजेंट है, वाटर, एयर, एसिड, बेस, इन सब के साथ मेटल्स का क्या रिएक्शन होता है वो हम एनालाइज करने की ओर बढ़ रहे हैं. सो दीज आर द टू बेसिक रिएक्शन ऑफ मेटल्स हियर एंड फोकस वन थिंग. अब हम लोग कुछ इसमें बेसिक चीजें बात करने जा रहे हैं. ये मैं रफ करने जा रहा हूँ. बुक में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं. सपोज यू आर स्टडिंग द कंटिन्यूइंग टॉपिक, सो यू हैव टू टेक द बुक्स एंड रीड वन लाइन बाय लाइन ईच एंड एवरी टॉपिक विच कैन बी इजियर टू यू टू अंडरस्टैंड द मटेरियल. अब यहाँ पे ऑक्साइड की बात हो रही है. आप लोगों ने पढ़ा होगा द मेटल ऑक्साइड्स. जनरली मेटल ऑक्साइड्स हैविंग द बेसिक प्रॉपर्टीज. मेटल ऑक्साइड हैविंग द बेसिक प्रॉपर्टीज, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात किया, कोई भी ले लेते हैं. एल्युमिनियम, सपोज एल्युमिनियम इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन. अब ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ गुड मेटल एंड ऑक्सीजन इज अ कंपोजिशन ऑफ एयर. सपोज एयर रिएक्टेड विथ एल्युमिनियम, सो यू विल गेट द एल्युमिनियम ऑक्साइड. एल्युमिनियम ऑक्साइड. अब ये जो फॉर्मूला बना है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हाउ इट इज फॉर्म. ये छोटे क्लास में 9th में आप लोग को सिखाया गया होगा. एल्युमिनियम का +3 होता है, इसका 2 होता है, तो ये क्रॉस हो जाता है. मीन्स एल्युमिनियम 2 टाइम हो जाएगा, ये 3 टाइम हो जाएगा. अब ऐसे नहीं 3 टाइम तो ये 6 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. ऑक्सीजन को ओवरऑल हम 3 टाइम लिख देंगे और एल्युमिनियम को 2 टाइम. ये है वैलेंसी बैलेंस करने का फॉर्मूला फॉर्म करने का एक तरीका, 9th में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो इन दिस रिएक्शन व्हाई आई हैव रिटन दिस पर्टिकुलर एल्युमिनियम ऑक्साइड, बिकॉज ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इट इज अ टाइप ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्साइड ऑफ मेटल, बिकॉज इट कैन इजिली रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस. याद रखिएगा, ये एक ऐसा ऑक्साइड है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है. तो अरे एक नई चीज को बताने जा रहा हूं आपको क्लास 10th लेवल पे. द ऑक्साइड ऑफ मेटल विच कैन बी रिएक्ट एसिड एज वेल एज बेस, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड. मे बी दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम टेक्स्ट. एम्फोटेरिक ऑक्साइड means amphoteric you can say amphoteric compound, amphoteric chemical or amphoteric it is oxide, so it is amphoteric oxide. याद रखिएगा. water is also amphoteric nature solvent. Amphoteric nature solvent because water can easily react with acid as well as base. means water act as a acid as well as base. जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड की तरह बिहेव करेगा. एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग. बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 41 में, आप वो एग्जांपल देख लीजिएगा. व्हेन एल्युमिनियम इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट बिहेव जस्ट लाइक अ बेस. जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेस की तरह रिएक्ट करेगा ये, और जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा. That is why it is called amphoteric. Amphoteric वर्ड को मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये आगे भी आपको मिलेगा. ठीक है. ये तो हो गया मेटल के ऑक्साइड के बारे में. थोड़ा सा हम लोगों ने मेटल के ऑक्साइड का नेचर देखा. जनरली मेटल ऑक्साइड्स हैव द सिंगल नेचर, बट सम मेटल ऑक्साइड हैविंग द ट्वाइस नेचर, एसिडिक नेचर एज वेल एज बेसिक नेचर. जनरली मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा,
तो ये एसिडिक नेचर भी शो कर सकता है, बेसिक नेचर। लेकिन मैक्सिमम मेटल ऑक्साइड्स हैविंग द नेचर व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर दे फॉर्म बेस। हम लोगों ने अभी देखा ना, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट किए किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मींस इट रिएक्ट जस्ट लाइक अ सिंपल ऑक्साइड and reacting with water and forming base। इस केस में क्या होगा, ये बेस भी बना सकता है, एसिडिक नेचर का भी कोई प्रोडक्ट बना सकता है। नेक्स्ट इसी में हम लोग देखने जा रहे हैं, some kind of metals they are also reacting with air and they are forming oxide टू प्रोटेक्ट द मेटल। अब देखिए क्या नया पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, हम लोग अभी भी उसी पॉइंट पे हैं, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एयर। क्या हुआ था, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एयर दे फॉर्मिंग ऑक्साइड, और उस ऑक्साइड को इन केस हम वाटर में रिएक्ट करा रहे थे तो वो हाइड्रोक्साइड बन जा रहा था, वहां तक खत्म हो गया था। हम लोगों ने कुछ ऐसे ऑक्साइड भी देखे जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ठीक है, वो ऑक्साइड मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं आसानी से और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। ये हो गया एम्फोटेरिक। अब देखते हैं, इसको रब करना होगा। नाउ वी विल सी सम काइंड ऑफ मेटल्स दे रिएक्ट विद वाटर ऑक्सीजन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कुछ ऐसे मेटल्स के नाम मैं बता सकता हूं, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, टीबी, लेड। ये आप लोग थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करके चीजों को समझ जाइएगा, स्टैंडर्ड का चीज है। यू हैव टू नो द मेटल्स नेम, इट्स सिंबल एंड इट्स फुल नेम। सपोज यू आर स्टडिंग वेल, सो यू हैव टू नो द एटॉमिक नंबर, सब चीजें भी पता होना चाहिए क्योंकि आगे के चैप्टर में ये जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसे मेटल हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और अपने ही ऊपर, अपने ही सरफेस पर एक ऑक्साइड का लेयर क्रिएट कर लेते हैं। मींस दे आर क्रिएटिंग ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस आफ्टर रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। सो हाउ इट इज यूजफुल टू देम, सपोज ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो गया, वन लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। कुछ एल्युमिनियम, इसी के कुछ एल्युमिनियम इसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं। दैट लेयर इज कंटिन्यूअसली प्रोटेक्टिंग दिस मेटल फ्रॉम कोरोजन एंड अनदर आउटर इफेक्ट, ह्यूमिडिटी, ये सब चीजों से वो बचा के रखते हैं उसको। तो ये एक प्रकार का एक बहुत अच्छा केमिकल फीचर है मेटल्स का, कुछ मेटल्स का, जो उसके ऊपर आउटर ऑक्साइड का लेयर फॉर्म कर रहे हैं। आपको याद होगा, मैं रिमाइंड करता हूं, एक क्वेश्चन है, मैग्नीशियम विल बी रब्ड, मैग्नीशियम विल बी रब्ड बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम को जलाने से पहले रब करते हैं, उसको घिसते हैं। क्यों घिसते हैं? उसी तरह से मैग्नीशियम के ऊपर एक आउटर लेयर हो जाता है, आउटर लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्म हो जाएगा। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हटाने के लिए रब किया जाता है, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर अराउंड द मैग्नीशियम मेटल इट कैन नॉट बी बर्न, बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रोटेक्टिंग इट, उसको प्रोटेक्ट करता है। ये क्वेश्चन था आपका सबसे पहले चैप्टर में, ठीक है। ये हो गया आपको प्रोटेक्टिंग प्रोसेस, प्रोटेक्टिंग एक क्वेश्चन बन सकता है कि सम मेटल्स इज प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ बाय मेकिंग इट्स ऑक्साइड। हाउ? तो आपको बताना है ड्यू टू द reaction of metal, some metals almost metal is reacting with oxygen and forming oxide, so these metals are protecting themselves by this process। अब इसी में एक प्रोसेस है एनोडाइजिंग, एक वर्ड है एनोडाइजिंग, इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूं। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग, सॉरी ये सिंगल है ना, एनोडाइजिंग। Anodizing means anode. The one word you have already listened about anode. Anode and cathode. आपको पता है एनोड कैथोड का क्या रोल है?
चलिए हम लोग इसको एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। सपोज वी हैव टू इलेक्ट्रोड इन अ इलेक्ट्रोलिसिस सेटअप। हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिसिस सेटअप है और इसको मैं बना देता हूं, इट विल बी एनोड। समझ लो क्या है, एनोड, एनोड ऑफ एल्युमिनियम। और ये किस चीज का है, एल्युमिनियम का एनोड है। ठीक है, यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एज ए सॉल्यूशन वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड। ये कुछ भी हो उससे आपको फिलहाल मतलब नहीं है, लेकिन ये कैथोड है। इज कैथोड। इस प्रोसेस में क्या होगा, सपोज वी आर पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, हम लोगों ने बैटरी वगैरह सेटअप कर दिया पूरा। वी आर पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 in the setup of anode and cathode where anode is made of aluminium। याद रखिए एनोड किससे बना है, एल्युमिनियम। तो इस प्रोसेस में H2SO4 जब डाइसोशिएट होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा उसका, मींस इलेक्ट्रिक इफेक्ट से वो जब ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन कहां पे रिलीज होगा, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिंग, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, माइनस। ठीक है, माइनस मतलब एन आयन, एन आयन इज गोइंग टू एनोड। ये मैं आपको बता चुका हूं, एन आयन हमेशा किधर, किस इलेक्ट्रोड की ओर भागता है, एनोड की ओर। एनोड मतलब कौन सा चार्ज होता है, प्लस। कैथोड मतलब कौन सा चार्ज होता है, माइनस। माइनस किधर भागेगा, प्लस की ओर। ठीक है, प्लस मींस एनोड। एनोड किस चीज का बना है, एल्युमिनियम। अब ऑक्सीजन एल्युमिनियम के पास आ गया तो क्या होगा, फिर से व्हेन मेटल कॉन्टेक्टेड टू द ऑक्सीजन क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड। तो इसके वजह से इस एल्युमिनियम के चारों तरफ क्या लेयर बन जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। दैट ऑक्साइड इज प्रोटेक्टिंग द बेसिक एल्युमिनियम मेटल फ्रॉम कोरोजन एंड फर्दर एनी काइंड ऑफ कोरोजन प्रोसेस और बर्निंग प्रोसेस। ठीक है, इसी प्रोसेस से याद रखिएगा हमारे घरों में जो हम लोग एल्युमिनियम के बर्तन यूज करते हैं, that utensils of aluminium is protected and layered by the aluminium oxide by the processing of anodizing। ठीक है, anodizing is the one of the very important chemical process where aluminium is oxidized in the process of electrolysis where H2SO4 solution is present as a electrolyte। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ते भी रहिएगा तो समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए, मींस वी हैव कंप्लीटेड, सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जहां पर मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है बहुत सारी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होती है। चलिए, अब इसको मैं हटाता हूं, कुछ छूट गया हो तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, या तो मैं अगले टॉपिक में उसको क्लियर कर दूंगा। देखिए, अब ये काफी नहीं होता है, वी हैव ऑलमोस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल मेटल विद द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक रिएक्शन से आप सभी मेटल्स को जस्टिफाई या मेटल्स को परख नहीं सकते। वी कैन नॉट चेक द ऑल मेटल्स एंड इट्स significant properties structure by single chemical reaction। मतलब ऑक्सीजन से बस हम लोग उसको चेक नहीं कर सकते कि वो मेटल कैसा है, कितनी रिएक्टिविटी है। तो अब हम फिर चेक करते हैं, हो सकता है कोई मेटल उसमें छूट गया हो उस रिएक्शन में, या छूटा है, ऑलमोस्ट छूटा है। तो अब हम लोग दूसरा प्रोसेस देखते हैं, वी आर गोइंग टू चेक अनदर मेटल बाय द प्रोसेसिंग ऑफ और बाय द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल with another reagent or agent। अब हम लोग देखेंगे what happen when water से हम चेक करेंगे, what happen when metals react with water। अब water के साथ चेक करें क्या होगा जब मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो पहले हम लोग क्लियर कर दें कि जो मेटल्स वहां पे जस्टिफाई नहीं हो पाए थे वो यहाँ पे अब फिर उसके साथ चेक कर लेंगे हम लोग उसको।
कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कितना करेंगे, कौन सा मेटल कैसे करेगा, गर्म पानी से करेगा या ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा, तो ये सब चीजें हम लोग चेक करेंगे। तो पहले मैं कुछ बता दूं, सम मेटल्स दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट टॉपिक आर वेरी रिएक्टिव लाइक सोडियम, पोटेशियम। ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत रिएक्टिव होते हैं। इवन सपोज वी आर स्प्रिंकलिंग सम अमाउंट ऑफ वाटर टू देम, दे आर स्टार्ट टू बर्न। ऐसे इतने रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, बहुत रिएक्टिव मेटल, पानी पड़ते ही वो आग प्रोड्यूस कर देते हैं, जलने लगते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं पानी से उनको कोई इफेक्ट नहीं होता, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, दीज आर द नोबल मेटल। ऐसे मेटल हैं जिनको एयर वाटर से कुछ खास रिएक्टिविटी देखने को नहीं मिलता। कुछ मेटल्स ऐसे हैं कि उनको ठंडे पानी के बजाय इंस्टेड ऑफ द कोल्ड वाटर वी हैव टू गिव इन हॉट वाटर। Some metals need not the liquid form of water, they need steam, भाप से रिएक्शन होता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बुक में हैं, मैं कोशिश करता हूँ सारे पॉइंट्स को बताने का। अगर कुछ छूट जाता है तो आप लोग इस बुक को, मैंने जैसा बताया कि लाइन टू लाइन चीज़ें को पढ़िए, बहुत ईजी है, समझ आ जाएगा। मेरे यहाँ इस वीडियो के बाद आप खुद भी सेल्फ स्टडी करिए तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं जनरली क्या होता है। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, जनरल फॉर्मूला देखते हैं। मेटल्स, जनरल है ये, मेटल्स रिएक्टिंग विथ वाटर, दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड, प्लस हाइड्रोजन। ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। जहां पर वाटर मेटल या मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड कॉमनली बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। हाइड्रोजन गैस है ये, ठीक है, हाइड्रोजन का ये जनरल फॉर्मूला है। तो हो सकता है कुछ मेटल्स इसको फॉलो ना करें, जैसे मैं शुरू में ही बताया वो ठंडे पानी में नहीं रिएक्ट करेंगे, वो गर्म पानी चाहिए होगा, कुछ मेटल्स की बात है। तो वही हम लोग यहाँ पर पॉइंट वाइज क्लियर कर देते हैं। तो जैसे मैंने बताया व्याग्रस मेटल, कुछ हम लोग व्याग्रस मेटल की बात करते हैं। व्याग्रस मेटल, व्याग्रस का मतलब होता है बहुत रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव मेटल। वेरी रिएक्टिव मेटल मतलब जो आसानी से रिएक्ट करते हैं। तो आसानी से रिएक्ट करने वाले मेटल्स में पहले हम लोग सीधे से लिख लेते हैं सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब कुछ ऐसे मेटल हैं बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। अब इसमें सेम वही प्रोसेस करेगा, वाटर डालेंगे, मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये आप लोग बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। बैलेंसिंग याद रखिएगा, बैलेंसिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट where you have to balance the number of molecules as per your given structure और chemical reaction। chemical reaction फॉर्मूला जो दिया होगा उसके हिसाब से आपको करना होगा, ये सीखना होगा आपको। and you for this you have to practice, you have to write maximum time chemical reaction। chemical reaction को लिखिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं लग रहा है कि N2 तो बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो बैलेंस नहीं हुआ है। फिर अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सोडियम के बढ़ाने होंगे, ठीक है, सोडियम को बढ़ा दीजिए। ओके, तो इस तरह से आप खुद चेक करिए इसको। मीन्स सपोज यू आर प्रैक्टिसिंग मैक्सिमम टाइम, सो इट विल बी डन। ओके, तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं वाटर के साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और मेटल्स की। कुछ ऐसे मेटल्स हैं, अब सोडियम है, सोडियम भी इसी प्रोसेस के तहत काम करेगा, ठीक है। अब मैं सोडियम और मैग्नीशियम की बात करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम these are the metals, they can easily react with the water and form इसको कर लेते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करो। ये प्रोसेस वैसा ही होगा, सेम इसके तरह होगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, फिर हाइड्रोजन गैस बन जाएगा।
अब याद रखिए मेटल ऑक्साइड हम लोगों ने बात किया, मेटल ऑक्साइड भी हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है। कैसे? फिर से वाटर के साथ रिएक्शन। सपोज वी हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है दोनों केस में, तो मेटल ऑक्साइड ना बनने के बजाय आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो आप बोलोगे सर कैल्शियम मैग्नीशियम वाटर साथ रिएक्ट करके पहले ऑक्साइड बनाना चाहिए, तो ठीक है ऑक्साइड बनाता है, लेकिन हमको उस स्टेप को 2 स्टेप में लिखने के बजाय वी कैन समराइज द 2 स्टेप्स इन अ सिंगल। ठीक है, एक ही स्टेप में हम लोग ने कर दिया, क्योंकि मेटल ऑक्साइड फिर वाटर इसके पास तो है ही ना, इस रिएक्शन में ऑलरेडी वाटर अवेलेबल है एक्सेस अमाउंट में, तो फिर वो हाइड्रोक्साइड बन गया। इस तरह से हाइड्रोक्साइड भी आप लिख सकते हो, दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज ए हाइड्रोक्साइड रिएक्शन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कुछ मेटल्स हैं जो ठंडे पानी में रिएक्ट, ये याद रखिएगा ये जो रिएक्शन है ये नॉर्मल वाटर में नहीं हो पाता है। ठीक है, मैग्नीशियम वाला इसको थोड़ा सा गर्म पानी की आवश्यकता होती है, दिस रिएक्शन रिक्वायर हॉट वाटर। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो ठंडे या गर्म पानी दोनों में नहीं होते, उनको स्टीम की जरूरत पड़ती है। स्टीम मतलब मैंने बताया भाप, स्टीम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ form of water, but it is formed after boiling and for present as a vapor. तो एल्युमिनियम उस कैटेगरी में हम रखते हैं एल्युमिनियम को। वी हैव एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या होता है ना ठंडे पानी से, ये मैं इसलिए सेपरेट बता रहा हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एल्युमिनियम और आयरन, आयरन एंड एल्युमिनियम, these two metals neither be react to cold or hot water, they can easily react with the steam, स्टीम के साथ इजीली रिएक्ट करेंगे तो प्रोसेस सेम होगा, ऑक्साइड बनेगा, वो स्टीम जाता है तो हाइड्रोक्साइड भी बन जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। अब इसमें एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, कभी कभी क्वेश्चन आता है कैल्शियम वाले में, क्वेश्चन आता है मैं भूल गया, कैल्शियम वाले में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम फ्लोट करने लगता है, व्हाई कैल्शियम इज फ्लोटिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड वाटर। तो उस केस में क्या होता है कि बबल्स फॉर्म होते हैं, द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दैट बबल इज मेकिंग टू फ्लोट, मेकिंग द कैल्शियम टू फ्लोट। कैल्शियम के कुछ पार्टिकल्स को वो क्या करता है ऊपर उठा देता है, बबल्स मींस इट इज अ टाइप ऑफ गैस एंड गैस इज वेरी लाइट एंड इट इज गोइंग अप इन अ लिक्विड, तो वही क्या करता है कैल्शियम को थोड़ा सा ऊपर की ओर पुश कर देता है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर फ्लोटिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ दैट मेटल विद वाटर, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फ्लोट क्यों करने लगता है, तो हाइड्रोजन गैस बबल फॉर्म होता है जो उसको ऊपर की ओर पुश कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया टाइम। इसी वीडियो में हमें कंटिन्यू कर लेते हैं हार्ड प्रॉपर्टीज को। What happen when metals react with acid? अब इसको मैं एसिड कर देता हूं, ये छोटा है ज्यादा नहीं है, इसमें सब थ्योरी बेस्ड है, बहुत सारी चीजें थ्योरी बेस्ड है, लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन पेपर जब बनते हैं तो ये सारी चीजें इक्वेशन वाइज कन्वर्ट भी कर दिए जाते हैं, तो जो चीजें वहां पर थ्योरी बेस्ड लिखी हुई हैं वर्डिंग में है उसको आप इक्वेशन में देखिएगा, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। हम लोग अभी इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इन द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट, फिर से जल्दी जल्दी करते हैं इसको, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड क्या बनता है बताइए, सॉल्ट एंड क्या बनेगा, सॉल्ट एंड some kind of sorry it is gas। अब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक मेटल ले लेते हैं, सपोज वी हैव आयरन एंड वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड, या यहाँ पे जिंक ले लेते हैं, जिंक वाले से हम लोग ये भी थे, तो ये जाएगा जिंक सल्फेट, सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर।
तो ये देखिए मेटल एसिड के साथ रिएक्ट किया, क्या बना, सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस बना। ये कॉमन रिएक्शन था वहां पे। अब इसको यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे मेटल्स हैं, वी आर डिफ्रेंशिएटिंग द मेटल्स टू ईच अदर। हम लोग मेटल्स को भी एक दूसरे में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी, उसके पावर और उसकी स्ट्रक्चर पे रिएक्शन वाइज देख रहे हैं। इसलिए हमको इस चैप्टर में यहाँ फिर से पढ़ना होगा कि कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ मेटल से रिएक्ट ही नहीं करते, या करते हैं तो बहुत कम करते हैं, या कंडीशन अलग होता है उनका। तो वही हम लोग यहाँ पे बात करने के लिए इस टॉपिक को कंटिन्यू रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ये तो हो गया, इसको हम ये कॉमन, हम इसको सपोज कर सकते हैं कॉमन एक रिएक्शन है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड फॉर्म सॉल्ट है। अब नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, HNO3। क्वेश्चन बनता है इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ। मैक्सिमम मेटल्स जो होते हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट तो बनाते हैं। ठीक है, सॉल्ट अब कैसे एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि व्हाई नाइट्रिक एसिड इज रिएक्टिंग विद मेटल्स एंड नॉट प्रोड्यूसिंग द हाइड्रोजन गैस। नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाए या कुछ भी बनाए, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कंपल्सरी निकलना चाहिए। ये ऐसा मतलब है फॉर्मूला। लेकिन नाइट्रिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता। तो इसके पीछे कारण ये है कि नाइट्रिक एसिड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एसिड। इसको मेरे बताने का मतलब यही था, ऑक्सीडाइजिंग एसिड। नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो सपोज हमारे रिएक्शन में कुछ हुआ, ये मेटल मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो मान लेते कोई सॉल्ट बना, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनता सपोज बनता, लेकिन नहीं बनेगा क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करके क्या कर देता है, इसको H2O बना देता है। मीन्स हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड by the oxidizing agent nitric acid and converted into water। मतलब इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल कौन कराता है, नाइट्रिक एसिड। दैट नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग द हाइड्रोजन टू H2O, और ये ब्रेक होकर कुछ और फॉर्म कर लेगा इसी रिएक्शन में। वो नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन पर ठीक है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से आप बुक में दिया हुआ है, उसको और अच्छे से चेक कर लेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, व्हेन नाइट्रिक एसिड इज रिएक्टिंग विद मेटल एंड हाइड्रोजन गैस इज नॉट फॉर्म ड्यू टू द नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन टू वाटर। मतलब वाटर बनेगा यहाँ पे। इन दिस रिएक्शन वाटर इज फॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बदले क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब इसी रिएक्शन में बुक में लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज ये कर सकते हैं। मतलब बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो मैग्नीशियम और मैंगनीज वो प्रोसेस कर लेंगे। मतलब वहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वाटर नहीं बनेगा। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है। अब रिएक्टिविटी की बात करते हैं हम लोग। डाइल्यूट, अब बुक में लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको हम लोग एक्टिविटी वगैरह करने से पता चलता है, एक्टिविटी हम नहीं कर पा रहे हैं। डाइल्यूट HCl जो होता है, डाइल्यूट HCl बहुत सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है। डाइल्यूट HCl कैन नॉट रिएक्ट विद सम काइंड ऑफ मेटल्स। अब इसमें मेटल्स की रिएक्टिविटी पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, एक सेकेंड बुक ले लेते हैं हम लोग। रिएक्टिविटी सीरीज के लिए हम लोग को बुक में देखिए पेज नंबर 45। पेज नंबर 45 में एक टेबल दिया हुआ है 3.2। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल एंड बाय दिस टेबल यू विल सॉल्व so many type of questions related to the reactivity of metals। तो इसमें मैं यही बता रहा था, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये जो ऐसा सीरीज है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
पेज नंबर 45 में सीक्वेंस ऊपर से नीचे जाने पर मीन्स इट इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर क्या है, रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ अगर हम लोग चेक करते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीजेस ऑर्डर, मतलब आपका ये जो है मैंने जो तीनों लिखा है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और क्या है यहाँ पे जिंक, आयरन, जिंक और आयरन, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है आपका। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव इन चारों में, फिर ये इस तरह से। तो एक क्वेश्चन ये है कि कॉपर बबल्स क्यों नहीं प्रोड्यूस करता है। सपोज हम लोग कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसी में कॉपर बहुत नीचे, आप देखिएगा कॉपर और नीचे आएगा, लेड आएगा, फिर उसके और नीचे आएगा, फिर ये कॉपर हाइड्रोजन के नीचे, उस सीरीज में देखिएगा हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है कॉपर, और हाइड्रोजन मिड पॉइंट है, याद रखिएगा हाइड्रोजन इज द मिड पॉइंट ऑफ रिएक्टिविटी। इसके नीचे जितने भी आते हैं वो वेरी लो रिएक्टिव है, हाइड्रोजन के ऊपर जो है हाई रिएक्टिव है, कुछ मॉडरेट है बीच में, फिर ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो सोडियम पोटेशियम का स्थान देखो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर पोटेशियम है, फिर सोडियम है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ सारी चीजों में कि कॉपर इज नॉट रिएक्टिंग, कॉपर एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करता और बबल प्रोड्यूस नहीं करता। बबल का मतलब हाइड्रोजन गैस को लेकर बोला यार, हाइड्रोजन गैस हम लोगों ने देखा था, when metals react with acid they producing most of the time hydrogen gas, that hydrogen gas is shown in a reactivity as a bubble। तो वो जो बबल है वो कॉपर के साथ क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है यार, कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट को हम बात किए थे एब्रिविएशन DIL के रूप में शो करते हैं, डाइल्यूट HCl एंड नॉट प्रोड्यूसिंग बबल। बबल का मतलब यहाँ पे क्या है, बबल मतलब हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं, और चैप्टर देखने से छोटा है लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। चलिए ये हो गया एसिड वाला भी है, और एक लास्ट रिएक्टिविटी में इसी में देखते हैं हम लोग मेटल्स का रिएक्शन। ये भी आप लोग ने फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हो कैसे, व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ अनदर मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्यूशन बोल सकते हो या सॉल्ट। आप लोग को याद करिए, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू in the first chapter chemical reaction and balancing where we had discussed about the displacement reaction, simple displacement reaction। एकदम एक ही क्वेश्चन इसी से आप क्लियर कर सकते हो। आयरन रिएक्ट करता था कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है, कॉपर इज आल्सो मेटल, आयरन इज आल्सो मेटल, तो बन जाता था क्या, आयरन इज डिस्प्लेसिंग द कॉपर को डिस्प्लेस कर देता था, खुद यहाँ पे आयरन सल्फेट फॉर्म कर लेता था, और कॉपर सॉल्यूशन से बाहर होकर प्रिसिपिटेट हो जाता था। ये डाउनवर्ड जो एरो है वो प्रिसिपिटेट होने का सिंबल है, अपवर्ड एरो गैस इवॉल्व होने का था, एक डाउनवर्ड मतलब प्रिसिपिटेट। ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम चीज यहां पर भी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, जो पावरफुल मेटल होता है, द पावरफुल मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस पावरफुल मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। ये लेस पावरफुल मेटल का सॉल्ट है या सॉल्यूशन बोल सकते हो, इसमें से पावरफुल मेटल ने उसको डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह ले ली और खुद एक सॉल्ट बना लिया और उसको प्रिसिपिटेट कर दिया, मतलब सॉल्यूशन में नीचे बैठा दिया। तो बहुत अच्छा एक एग्जांपल वहीं पे आपको मिल जाएगा इसका। तो यहाँ पर मेटल अगर मेटल के सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, यहाँ पे सॉरी डी लास्ट पॉइंट है, 4th नंबर का रिएक्शन है। तो यहाँ पर वही है। अब रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान रखिए, फिर से मैं बुक दिखाना चाहूंगा आपको।
पेज नंबर 45 में रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसको सिंपल आपको समझ आ जाएगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में, दिस इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मैटर। ठीक है, अब इसमें जो ऊपर है मीन्स वो ज्यादा पावरफुल है, तो मोर पावरफुल मेटल डिस्प्लेस द लेस पावरफुल मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। लेस पावरफुल मेटल का सॉल्ट है या सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन बोल सकते हैं, सॉल्ट, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो लेस पावरफुल मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से मोर पावरफुल मेटल ने उसको डिस्प्लेस कर दिया और ये प्रेसिपिटेट हो गया, खुद उसने क्या बना दिया? सॉल्ट। तो केमिकल रिएक्शन हुआ तो कलर भी चेंज होगा, गैस भी निकल सकती है, तो यहाँ पर कलर चेंज होता है। अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू होता है तो वो फेड हो जाता है। कैसा हो जाता है? फेड। फेड का मतलब कलरलेस। फेड मीन्स कलरलेस, ऑलमोस्ट कलर उसका चला जाता है, ये कलरलेस हो जाएगा। और ये जो कॉपर है, ये जो कॉपर है आपका बाहर प्रेसिपिटेट हो जाएगा उस सॉल्यूशन में, याद रखिए। या आप बोल सकते हो उस नेल के ऊपर चला जाएगा। वहां पे हम लोग देखे थे कि एक नेल था, कुछ ऐसा था, मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर भी हम लोग देखते हैं। तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक नेल हम लोगों ने क्या किया है? डीप किया हुआ है। वी डीप वन आयरन नेल, ये आयरन नेल है। फिर कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये हो जाएगा आपका, ये ब्लू कलर है, ब्लू कॉपर सल्फेट, ये बन जाएगा आपका आयरन सल्फेट, फेड हो जाएगा कलर। ठीक है, नौ नेल, नेल के ऊपर, नेल के ऊपर एक लेयर आ जाएगा, कॉपर लेयर। क्या लेयर आ जाएगा? कॉपर लेयर। मतलब मेरे कहने का मतलब ये जो कॉपर प्रेसिपिटेट हुआ था तो वो यूटेंसिल या जो हमारे पास बर्तन था उसके नीचे नहीं गया, वो उस आयरन के सरफेस पर आकर चिपक गया। दैट इज व्हाई आयरन लुक लाइक अ कॉपर। बाद में आप देखोगे तो आयरन कैसा दिखने लगता है? कॉपर की तरह। क्यों? क्योंकि आयरन कॉपर नहीं बन गया, आयरन के ऊपर कॉपर जो प्रेसिपिटेट हुआ था वो जाके लेयर बना लिया, वो हट भी जाता है। ठीक है, इस तरह से व्हेन मेटल रिएक्ट विद अनदर मेटल सॉल्ट, सो पावरफुल मेटल मेक द इट्स सॉल्ट एंड द लेस पावरफुल मेटल्स विल बी प्रेसिपिटेट। इसको आप लिख सकते हो प्रेसिपिटेट हो गया। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट कॉपर। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हैं, सारे केमिकल रिएक्शन आप देखिए और खुद से और ट्राई करिए। मीन्स यहाँ पे आपको सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना है। चलिए इसके आगे कुछ इंटेस्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। इंटेस्ट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 इंटेस्ट क्वेश्चन, इट विल बी होमवर्क फॉर यू and try to complete it and maintain the copy properly. Make the notes, exercise, in-text question, whatever the keyword is coming in our topic, so that all will be in your copy. Okay, in next topic we will learn how do metal and non-metal react. मेटल एंड नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, वही वैलेंसी वाला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। 9th के कॉन्सेप्ट वहाँ फिर रिटर्न आएंगे, इस तरह से हो जाएगा। और इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कुछ टॉपिक इस साल के लिए डिलीट हो गए हैं, फिर भी हम उसको देखेंगे। टॉपिक उसमें है जनरली मेटलर्जिकल जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, मेटल्स का अकरेंस, मेटल्स को शुद्ध करना, उनको फिर उसके अंदर से इम्प्योरिटी निकालना, दैट ऑल कॉल्ड मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ मेटल। तो वो सब अभी इस साल हटा दिए गए हैं, लेकिन हम लोग उसको देखेंगे, ब्रीफली देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।